السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم لوگ امین النحو میں جملہ خبریہ کی قسموں کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ آج ہمیں جملہ کی دوسری قسم جملہ انشائیہ کے بارے میں پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ جملہ انشائیہ کے بارے میں پڑھنا ہے۔ جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ انشائیہ ایسا جملہ ہے کہ اس کے کہنے والے کو سچا اور جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہے جملہ انشائیہ کی تعریف۔ آئیے ہم لوگ اس تعریف کو شرطوں میں بانٹ لیتے ہیں۔ جملہ انشائیہ کی دو شرطیں بنیں گی۔ نمبر 1 جملہ ہو، نمبر 2 اس کے کہنے والے کو جھوٹا یا سچا نہ کہہ سکے۔ مثال کے طور پہ اضرب، جیسے اضرب کا معنی ہوتا ہے تو مار۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جملہ انشائیہ ہے کہ نہیں۔ جملہ انشائیہ ہے کہ نہیں، یہ جاننے کے لیے ہمیں جملہ انشائیہ کی دونوں شرطیں ملانی ہیں۔ جملہ انشائیہ کی پہلی شرط کیا ہے؟ جملہ ہو۔ یہ جملہ ہے کہ نہیں، یہ جاننے کے لیے ہمیں جملہ کی دونوں شرطیں ملانی ہوں گی۔ جملہ کی پہلی شرط کیا ہے؟ مرکب ہو۔ یہ مرکب ہے کہ نہیں، یہ جاننے کے لیے ہمیں مرکب کی شرطیں ملانی ہوں گی۔ مرکب کی پہلی شرط کیا ہے؟ کہ وہ لفظ ہو، آدمی کے منہ سے وہ بات نکلے۔ اضرب یہ لفظ ہے، آدمی کے منہ سے بات نکل رہی ہے۔ مرکب کی دوسری شرط کیا ہے؟ کہ 2 یا 2 سے زائد کلموں سے مل کر بنا ہے۔ یہاں ہمیں اضرب کیا لکھ رہا ہے؟ ظاہر ہمیں کیا لکھ رہا ہے کہ ایک لفظ ہے، حالانکہ حقیقتاً یہ کیا ہے؟ اس میں 2 الفاظ ہیں۔ حقیقتاً اس میں کتنے الفاظ ہیں؟ 2 الفاظ ہیں۔ اضرب اصل میں کیا ہے؟ اضرب انتا، یعنی 2 یا 2 سے زائد کلموں سے مل کر یہ بنا ہے۔ گرچہ ہمیں ظاہر کیا لکھ رہا ہے؟ ایک کلمہ دکھ رہا ہے، لیکن حقیقتاً اس میں کتنے کلمے ہیں؟ 2 کلمے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مرکب کی دوسری شرط کیا ہے؟ کہ 2 یا 2 سے زائد کلموں سے مل کر بنا ہو۔ تو یہ 2 یا 2 سے زائد کلموں سے مل کر بنا ہے۔ اس کے اندر مرکب کی دونوں شرطیں پائی گئی۔ اب اس کے اندر جملہ کی پہلی شرط پائی گئی۔ جملہ کی دوسری شرط کیا ہے؟ کہ جب کہنے والا چپ ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو۔ مثال کے طور پہ میں بول رہا ہوں، اضرب میں بول رہا ہوں، عبد الحمید میری بات سن رہا ہے۔ کون میری بات سن رہا ہے؟ عبد الحمید میری بات سن رہا ہے۔ میں نے یہ جملہ بولا اضرب، میں نے بولا عبد الحمید سن رہے ہیں، میں خاموش ہو گیا تو عبد الحمید کو کیا معلوم ہو رہا ہے؟ حکم معلوم ہو رہا ہے۔ کیا معلوم ہو رہا ہے؟ حکم معلوم ہو رہا ہے۔ جملہ کی دوسری شرط کیا ہے؟ کہ جب کہنے والا چپ ہو جائے، میں کہنے والا ہوں، میں چپ ہو گیا تو سننے والے کو کوئی خبر معلوم ہے۔ سننے والے عبد الحمید ہیں، ان کو کوئی خبر معلوم ہو رہی ہے؟ کوئی خبر معلوم نہیں ہو رہی ہے۔ اور اگر کوئی خبر معلوم نہ ہو تو کیا معلوم ہو؟ حکم معلوم ہے۔ عبد الحمید کو کیا معلوم ہو رہا ہے؟ کہ میں انہیں کیا کر رہا ہوں؟ حکم دے رہا ہوں۔ کس کا حکم دے رہا ہوں؟ مارنے کا حکم دے رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے اندر جملہ کی دوسری شرط بھی پائی گئی۔ اب اس کے اندر جملہ انشائیہ کی پہلی شرط پائی گئی۔ جملہ انشائیہ کی دوسری شرط کیا ہے؟ اس کے کہنے والے کو جھوٹا یا سچا نہ کہہ سکے۔ اضرب تو مار، مثال کے طور پہ میں نے جملہ بولا ہے، اس کے کہنے والے کو جھوٹا یا سچا نہ کہہ سکے۔ میں نے جملہ بولا ہے، آپ مجھے جھوٹا یا سچا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ اس میں حکم ہے۔ حکم میں جھوٹے اور سچے کا معاملہ ہی نہیں آتا ہے۔ جھوٹا اور سچا ہونا یہ کس کے بارے میں ہوگا؟ جب کوئی خبر دی جائے گی تب وہاں دیکھا جائے گا کہ یہ خبر جھوٹی یا سچی ہے۔ یہاں حکم ہے، یہاں جھوٹے اور سچے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ اس کے کہنے والے کو جھوٹا یا سچا نہ کہہ سکتے۔ میں نے بولا اضرب تو مار، آپ مجھے نہ جھوٹا کہہ سکتے ہیں نہ سچا کہہ سکتے ہیں۔
इसके अंदर जुमला इंशाइया की दूसरी शर्त भी पाई गई। क्यों आप मुझे झूठा या सच्चा नहीं कह सकते हैं? क्योंकि मैंने हुक्म दिया है और हुक्म में झूठा या सच्चा होना नहीं देखा जाता। बात समझ में आ रही? तो इसके अंदर जुमला इंशाइया की दोनों शर्तें पाई गई। अब हम इसको क्या बोलेंगे? जुमला इंशाइया बोलेंगे। एक और मिसाल ले लीजिए, हल ज़रबा ज़ैद, हल ज़रबा ज़ैद, क्या ज़ैद ने मारा? हमें ये देखना है कि जुमला इंशाइया है कि नहीं। जुमला इंशाइया की पहली शर्त मिला ये जुमला हो, ये जुमला है कि नहीं। जुमला की पहली शर्त मिला है मुरक्कब हो, मुरक्कब है कि नहीं। मुरक्कब की पहली शर्त क्या? लफ्ज़ हो, आदमी के मुंह से बात निकले, ये लफ्ज़ है। मुरक्कब की दूसरी शर्त क्या है? दो या दो से ज़ायद कलीमों से मिलकर बना हो। ये दो या दो से ज़ायद कलीमों से मिलकर बना है, इसमें तीन कलीमे। इसके अंदर मुरक्कब की दोनों शर्तें पाई गई। अब इसके अंदर जुमला की पहली शर्त पाई गई। जुमला की दूसरी शर्त क्या है कि जब कहने वाला चुप हो जाए तो सुनने वाले को कोई खबर या कोई तरह मालूम। मैंने जुमला बोला, मैं खामोश हूं, जो सुनने वाला है उसको क्या मालूम हो रहा है? खबर मालूम हो रहा है, उसे ये पता चल रहा है कि मुझसे सवाल किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? इसके अंदर जुमले की दूसरी शर्त भी पाई गई। अब इसके अंदर जुमला इंशाइया की पहली शर्त पाई गई। जुमला इंशाइया की दूसरी शर्त क्या है? उसके कहने वाले को झूठा या सच्चा ना कह सके। हल ज़रबा ज़ैद, क्या ज़ैद ने मारा? मैंने सवाल किया, तो आप मुझे झूठा या सच्चा कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सवाल करते वक्त ये नहीं देखा जाएगा कि आदमी झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। सवाल में झूठ या सच का कोई मसला ही नहीं आता। मसला झूठा और सच्चा होने का कब आता है? जब खबर हो, खबर में झूठा या सच्चा देखा जाता है। तो आप इसके कहने वाले को झूठा या सच्चा नहीं कह सकते हैं। इसके अंदर जुमला इंशाइया की दूसरी शर्त भी पाई गई। अब हम इसको क्या बोलेंगे? जुमला इंशाइया बोलेंगे। क्यों जुमला इंशाइया बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर जुमला इंशाइया की दोनों शर्तें पाई जा रही हैं। एक और मिसाल ले लीजिए, ज़रबतु हामिद, मैंने हामिद को मारा। हमें ये देखना है कि जुमला इंशाइया है कि नहीं। जुमला इंशाइया की पहली शर्त क्या है? जुमला हो, ये जुमला है कि नहीं। जुमला की पहली शर्त है मुरक्कब, मुरक्कब है कि नहीं। मुरक्कब की पहली शर्त है कि लफ्ज़, ये लफ्ज़ आदमी के मुंह से बात निकलेगी। मुरक्कब की दूसरी शर्त क्या? दो या दो से ज़ायद कलीमों से मिलकर बना हो, ये दो या दो से ज़ायद कलीमों से मिलकर बना है। इसके अंदर मुरक्कब की दोनों शर्तें पाई जा रही हैं। अभी इसके अंदर जुमला की पहली शर्त पाई जा रही है। जुमला की दूसरी शर्त क्या है कि जब कहने वाला चुप हो जाए तो सुनने वाले को कोई खबर या तरह मालूम। मिसाल के तौर पे मैंने जुमला बोला, मैं खामोश हो गया, किसी ने मेरा ये जुमला सुना, उसको क्या मालूम हो रहा है? उसको खबर मालूम हो रहा है। क्या मालूम हो रहा है? खबर मालूम हो रहा है कि कोई आदमी मुझे ये खबर दे रहा है कि उसने क्या किया है? हामिद को मारा है। बात समझ में आ रही है? इसके अंदर जुमला की दोनों शर्तें पाई जा रही है। अब इसके अंदर जुमला इंशाइया की पहली शर्त पाई गई। जुमला इंशाइया की दूसरी शर्त क्या है? कि उसके कहने वाले को झूठा या सच्चा ना कह सके। ज़रबतु हामिद, मैंने हामिद को मारा। आप मुझे झूठा या सच्चा नहीं कह सकते हैं? नहीं, आप मुझे झूठा या सच्चा कह सकते हैं। मैं झूठ भी बोल सकता हूँ, सच भी बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये खबर है। खबर झूठी और सच्ची दोनों हो सकती है। बात समझ में आती है? तो जुमला इंशाइया की दूसरी शर्त क्या थी? उसके कहने वाले को झूठा या सच्चा ना कह सके। हालांकि जो जुमला बोला गया है, इस जुमले को जिसने बोला है हम उसको झूठा और सच्चा दोनों बोल सकते हैं। तो इसके अंदर जुमला इंशाइया की दूसरी शर्त नहीं पाई गई। अब हम इसको जुमला इंशाइया बोलेंगे, हम इसको जुमला इंशाइया नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर जुमला इंशाइया की दोनों शर्तें नहीं पाई जा रही हैं। आगे देखिए, जुमला इंशाइया की किस्मों के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं जुमला इंशाइया की 10 किस्में हैं। पहली किस्म का क्या नाम है? अम्र।
जैसे इजरिब तू मार, अम्र किसे कहते हैं? हुक्म को कहते हैं। यानी अगर किसी जुमले से हमें ये मालूम हो कि इस जुमले में हुक्म दिया जा रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? जुमला इंशाइया बोलेंगे। अगर हमें क्या मालूम हो, किसी जुमले में हमें ये मालूम हो कि इस जुमले में किसी काम के करने का हुक्म दिया जा रहा है तो उस जुमले को हम लोग क्या बोलेंगे? जुमला इंशाइया बोलेंगे। जैसे इजरिब तू मार, इससे क्या मालूम हो रहा है कि किसी को मारने का हुक्म दिया जा रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? जुमला इंशाइया। जुमला इंशाइया की दूसरी किस्म क्या है? नहीं। जैसे ला तज़रिब तू ना मार, ला तज़रिब तू ना मार, नहीं किसे कहते हैं? अगर हमें किसी जुमले में ये मालूम हो कि इस जुमले में किसी काम के ना करने का हुक्म दिया जा रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? जुमला इंशाइया बोलेंगे। जैसे ला तज़रिब तू ना मार, इसमें क्या हुक्म दिया जा रहा है? ना मारने का हुक्म दिया जा रहा है। यानी अगर किसी जुमले में हमें ये मालूम हो कि इसमें किसी काम के ना करने का हुक्म दिया जा रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? जुमला इंशाइया बोलेंगे। तीसरी किस्म क्या है? इस्तिफ़हाम। जैसे हल ज़रबा ज़ैद, हल ज़रबा ज़ैद, क्या ज़ैद ने मारा। यानी हमें किसी जुमले में ये मालूम हो कि इस जुमले में सवाल है तो हम उसको क्या बोलेंगे? जुमला इंशाइया बोलेंगे। हमें क्या मालूम हो कि किसी जुमले में सवाल किया जा रहा है, किसी जुमले में हमें ये मालूम हो कि इसमें सवाल किया जा रहा है तो हम उसको क्या बोल देंगे? जुमला इंशाइया बोल देंगे। जुमला इंशाइया की चौथी किस्म क्या है? तमन्ना। तमन्ना की तमन्नी किसे कहते हैं? किसी जुमले में हमें ये मालूम हो कि इसमें किसी चीज़ की ख्वाहिश की जा रही है, इसमें किसी चीज़ की तमन्ना की जा रही है, किसी चीज़ की आरज़ू की जा रही है, तो हम उस जुमले को क्या बोलेंगे? जुमला इंशाइया बोलेंगे। जैसे लैता ज़ैदन हाज़िर, जैसे लैता ज़ैदन हाज़िर, काश ज़ैद हाज़िर हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे? जुमला इंशाइया बोलेंगे। क्योंकि इस जुमले से हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें तमन्ना की जा रही है, आरज़ू की जा रही है। पांचवी किस्म क्या है? तरज्जी। यानी आप क्या करें? उम्मीद का इजहार करें। किसी जुमले से हमें ये पता चले कि इस जुमले में उम्मीद का इजहार किया जा रहा है तो हम उस जुमले को क्या बोलेंगे? जुमला इंशाइया बोलेंगे। जैसे लअल्ल अमरन गायब, उम्मीद है कि अमर गायब होगा। लअल्ल अमरन गायबन, उम्मीद है कि अमर गायब होगा। इस जुमले से क्या पता चल रहा है कि इसमें उम्मीद का इजहार किया जा रहा है, लिहाजा हम इस जुमले को क्या बोलेंगे? जुमला इंशाइया बोलेंगे। जुमला इंशाइया की छठी किस्म क्या है? पूछ। बिअतु अश्तरैतु, बिअतु अश्तरैतु, मैंने बेचा और मैंने खरीदा। यानी हमें किसी जुमले से ये पता चल रहा है कि इस जुमले में खरीदो फरोख्त के बारे में बतलाया गया है, खरीदने और बेचने के बारे में बतलाया गया है, तो हम उस जुमले को क्या बोलेंगे? जुमला इंशाइया बोलेंगे। आगे देखिए, सातवीं किस्म है निदा। यानी किसी जुमले से हमें ये मालूम हो कि यहाँ हरफ निदा के जरिए से किसी को बुलाया गया है, किसी को पुकारा गया है, तो हम उस जुमले को क्या बोलेंगे? जुमला इंशाइया बोलेंगे। जैसे या अल्लाह है अल्लाह। यानी किसी जुमले में हमें ये मालूम हो कि इस जुमले में हरफ निदा के जरिए से किसी को पुकारा गया है तो हम उस जुमले को क्या बोलेंगे? जुमला इंशाइया बोलेंगे। आगे देखिए, आठवीं किस्म है अर्ज़। अला तंसिलु, फतुसीब खैर। अर्ज़ किसे कहते हैं? अर्ज़ कहते हैं नरमी से, प्यार से आप किसी से कोई चीज़ तलब करें,
کسی سے کوئی چیز مانگے، کسی آدمی کے سامنے کوئی چیز عرض کرے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ عرض۔ جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیر، الا تنزل بنا ہمارے پاس کیوں نہیں آتے کہ بھلائی ہو، الا تنزل بنا فتصیب خیرا ہمارے پاس کیوں نہیں آتے کہ بھلائی ہو۔ اس میں کیا کیا جا رہا ہے؟ آدمی سے کوئی چیز طلب کی جا رہی ہے تو ہم اس کو کیا بولیں گے؟ جملہ انشائیہ بولیں گے۔ یعنی اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ کسی جملے میں نرمی کے ساتھ آدمی سے کوئی چیز طلب کی جا رہی ہے تو ہم اس جملے کو کیا بولیں گے؟ جملہ انشائیہ بولیں گے۔ اسی طرح سے جملہ انشائیہ کی نوعی قسم کیا ہے؟ قسم۔ یعنی کسی جملے میں اگر قسم کا ذکر ہے تو ہم اس کو کیا بولیں گے؟ جملہ انشائیہ بولیں گے۔ واللہ لأغلبن زید، اللہ کی قسم ہے ضرور زید کو ماروں گا۔ تو اگر کسی جملے میں قسم کا ذکر ہے تو ہم اس کو کیا بولیں گے؟ جملہ انشائیہ بولیں گے۔ اسی طرح سے اگر کسی جملے میں تعجب کا اظہار کیا گیا ہے تو ہم اس جملے کو کیا بولیں گے؟ جملہ انشائیہ بولیں گے۔ جیسے ما احسن زیدن وَأَحْسِنْ بِهِ، یعنی کسی جملے میں تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے تو ہم اس جملے کو کیا بولیں گے؟ جملہ انشائیہ بولیں گے۔ جیسے ما احسن زیدن وَأَحْسِنْ بِهِ، زید کس قدر حسین ہے اور وہ کیسا حسین ہے۔ سمجھ میری بات؟ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔